वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ +2 बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain which is also known as male gametophyte. Let us discuss the structure of microspore or pollen grain. They are found in tetrad form. They are found in the tetrad form, and when they mature and they are released from it and they acquire shape like this. How they appear, किस तरह की ये दिखते हैं, किसी माइक्रोस्कोप को लेके जब हम पानी में डिप करके और उसको स्लाइड पे रख के और एक ड्रॉप पानी की रख के या हम ग्लिसरीन की उस पे रख के उसको जब अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हाउ इट appears, it is appearing like this and it is surrounded by two walls prominently like this. It is surrounded by two walls. The outer is thick wall, outer wall is thick wall known as axine. Inner wall is thin wall and is known as intine. Approximately size varies 25 to 50 micrometer in diameter and contains prominent nucleus with chromatin material and dense cytoplasm. It contains dense cytoplasm. यही डायग्राम मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं. The outer wall is thick like this. इस तरह से ये thick दिखेगी, which is known as axine. And what is the composition of axine? Axine is, it is composed of a substance called sporopollenin. Sporopollenin. It is the hard part, thick layer and hard part. It is composed of sporopollen, which is highly resistant to high temperature, strong acids, alkalis, etc. It is highly resistant to high temperature, strong acids, alkalis, etc. It doesn't have any effect of these because of sporopollenin. तो इसका इतना ज़्यादा ये सेफ रहता है और no enzymes can degrade them. No enzymes can degrade them. कोई एंजाइम इनको डिग्रेड नहीं कर सकता है यहाँ पे. क्लियर? कोई भी एंजाइम इनको डिग्रेड नहीं कर पाता है यहाँ पे. दे आर सो सेफ, इतने ज्यादा ये सेफ हैं. और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, द नेक्स्ट पार्ट इज इंटाइन.
inner to it. This axine is somewhere lacking its thickness. आप ये देख रहे हो points, it is lacking somewhere its thickness. यहाँ पे ये लैक कर रहा है thickness को, ये वाला एरिया जो clear. These are named as germ pores. These are named as germ pores, and they will give rise to, these become germinal furrows. Germinal furrows appear होती है, इस तरह से ये दिखता है. अगर हम इसको बाहर से ऐसे देखेंगे तो they will give rise like this. इस तरह से देखेंगे ये ऐसी furrows ऐसी दिखती हैं, and they will give rise to the tubes which are known as pollen tubes. Germ pores will give rise to pollen tubes. यहां से pollen tubes निकलती हैं, वो रोल हम आगे देखेंगे. I hope कि एक्साइन का आपको पता लग गया होगा. What is sporopollen? Highly resistant. It is a make it hard, tough and resistant for high temperature, strong acid, alkalis, and no enzymes can degrade them. Okay. Next is intine, which is continuous with inner side to the cytoplasm and is thin and is composed of, it is composed of cellulose and pectin. सेल्यूलोज और पेक्टिन से ये बनी हुई रहती है. यहां तक क्लियर होगी बात. Axine and intine and inner cytoplasm, it is bounded by the membranes. Cytoplasm is surrounded by the membranes. This cytoplasm is surrounded by plasma membrane. It contains nucleus, prominent nucleus, and also contains some vacuoles. इसमें कुछ vacuoles भी होते हैं. They also contain some vacuoles. यहाँ तक clear होगी बात. Now what happens? This nucleus will undergo the division and forms two nuclei. Two celled, this one pollen grain or microspore will divide and form two types of cells here. One is vegetative cell and it contains this nucleus, and second is when it forms, and this one is known as, this one is named as this is known as vegetative cell and this is known as generative cell. ओके. वेजिटेटिव सेल का जो एक जब ये बनता है, इट एक्वायर्स मोर एंड मोर साइटोप्लाज्म, एंड इन केस ऑफ दिस अनदर सेल दैट इज फॉर्म्ड ए डिस्क लाइक या ओवॉइड हम इसको बोल सकते हैं. ये जो शेप है इस तरह से सिलिंड्रिकल सी शेप इसकी आ जाती है इस सेल की, जनरेटिव सेल की, और इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस. Vegetative cell is larger cell, contains large size vacuoles, dense cytoplasm, bigger cell, and contains irregular shaped nucleus. Second cell is formed by the, and this division is known as mitotic division. कौन सी डिवीजन यहाँ पे होती है? माइटोटिक डिवीजन होती है. माइटोटिक डिवीजन से दो सेल्स बनते हैं, इन विच वन सेल एक्वायर द लार्जर शेप एंड साइज and one cell acquire the smaller size. That is known as generative cell. This is known as
जनरेटिव सेल, ये मैंने यहाँ पे भी बना रखा है, जनरेटिव सेल, एंड दिस वन इज नोन एज वेजिटेटिव सेल, vegetative cell. And generative cell is disc-like, ovoid shaped and contains nucleus and dense cytoplasm. It contains dense cytoplasm and it is floating in the tube vegetative cell. It is floating in the vegetative cell. आई होप कि ये आपको क्लियर पता लग गया होगा। इसी की डिविजन मैंने ये दिखा रखी है, ये द शेप एंड थिकनेस, आउटर वॉल, इनर वॉल, 2 लेयर्ड है ये, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जर्मिनल फुरोज एंड जर्म पोर्स, जहां पे ये थिन एरिया होता है, जहां पे ये लाइन नहीं करती है, और इनर साइड पे क्या था हमारा, इंटाइन थी। इंटाइन की कंपोजिशन मैंने आपको बता दी, इंटाइन थिन थी, कंपोज्ड ऑफ सेलोज एंड पैक्टिन्स, continuous with the cytoplasm and contains the nucleus and it forms these 2 kind of cells, और ये 2 cells ये बनते हैं। तो इनको सिंगल पोलन को 2 celled stage पोलन भी बोल सकते हैं, 2 celled stage of pollen। और ओवरऑल जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स have 2 celled stage of pollens. Okay, 60% एंजियोस्पर्म्स में जो इनकी शेडिंग होती है, द pollen range which are shed out, जो गिर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, they are in the form of 2 celled stage and the remaining are in 3 celled stage. How it forms, how it happens? The generative cell divide and they forms 2 male gametic nuclei. 2 male gametic nuclei. Generative cell divide and form 2 male gametic nuclei and the cell become 3 celled stage. So the remained are in the 3 celled form. They are formed. अब अप्रोक्सीमेटली जो ऑल एंजियोस्पर्म में 60% इस तरह से 2 सेल स्टेज में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और बाकी के जो रिमेन्ड है दे आर शेड इन द फॉर्म ऑफ 3 सेल स्टेज। और 3rd सेल किस तरह से बनता है? बाय द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल की यहाँ डिवीजन हो जाती है तो वो 3 सेल स्टेज में गिरते हैं। अब इनकी एक और खास बात है कि कुछ एक डिसऑर्डर्स भी करते हैं ये, दे आल्सो कॉज सम डिसऑर्डर्स in air. When they are flowing in the air, some of these pollen grains या microspores also cause allergies और asthmatic या bronchital disorders। जो lungs के disorders हैं, जो bronchi के disorders हैं, they are also caused by the pollen grains या microspores। और इनके अलावा इनकी कुछ characteristics भी है, कुछ importance भी है, कुछ economic इंपॉर्टेंस भी है। आज के टाइम पे इन द वेस्टर्न कंट्रीज दे आर हाईली न्यूट्रिटिव, दीज पोलन ग्रेन्स आर हाईली न्यूट्रिटिव एंड दे मे बी यूज्ड एज टेबलेट्स एंड एज सिरप्स। इनके टेबलेट्स और सिरप्स यूज किए जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में एंड दे आर इंक्रीजिंग द स्टेमिना। दे आर यूज्ड एज टेबलेट्स एंड सिरप्स एंड दे आर गिवन टू द एथलीट्स। वहां पे एथलीट्स को दिए जाते हैं और हॉर्सेस को, विच आर रेस हॉर्सेस जो होते हैं उनको भी दिए जाते हैं, तो रेस हॉर्सेस को भी दिए जाते हैं टू रेज देयर स्टेमिना। ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी। और इनमें 1-2 चीजें और हैं। अगर हम बोल दें कि ये जो यहां से निकल जाएंगे तो क्या इनका लाइफ स्पैन रहेगा? हाँ, इनकी बायबिलिटी जो है वो कितने टाइम तक रहती है? दे मे बी बायबल फॉर, they are showing their viability for 30 minutes in pulses, rice या wheat, they have 30 minutes viability after shedding। गिरने के बाद 30 मिनट की इसकी viability रहती है, उसके बाद ये डैमेज हो जाते हैं। और
कुछ की मंथ्स तक रहती है, कुछ की कितनी वायबिलिटी होती है, मंथ्स तक रहती है। जैसे अगर हम बात करें फैमिली लिग्यूमिनोसी है, उनके एक बड़े सारे मेंबर्स में ऐसा होता है, उनकी लिग्यूमिनोसी और कुछ सोलानेसी फैमिली, इन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी जो पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी है वो मंथ्स तक रहती है, महीनों तक रहती है। तो इतने टाइम तक इनकी सर्वाइवल रहती है। और इनका जो फर्दर प्लेस है वो फिर फीमेल पार्ट पे आएगा, वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहां तक पता लग गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम। Now next we will discuss about the pistil, female reproductive part, जिसको मैंने बताया था आपको गाइनोशियम भी बोलते हैं। ये गाइनोशियम का एक सिंपल सा हमने यहाँ दिखाने की कोशिश करी है। ये अगर मैं आपको ये दिखाऊं बहुत सिंपल ऐसे, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये स्टिग्मा स्टाइल लॉन्ग फिलामेंट, एंड इसके बेसल पार्ट में विच इज स्वोलन पार्ट दैट इज नोन एज ओवरी, दैट इज just embedded in the swollen part thalamus, and this one was named as pedicel. इसको pedicel बोलते थे, ये हमने कल भी देखा था। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इस तरह से एक स्ट्रक्चर है। दिस इज नोन एज कंप्लीट फीमेल पार्ट, दिस इज नोन एज पिस्टिल। इसमें हम और साथ में इसमें ये डिस्कस करेंगे मैगास्पोरेंजियम, which is named also known as ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसैक, और इसमें छोटी छोटी चीजें और हैं। हम अब इसमें क्या करते हैं कि आमतौर पे बड़ी सारी जगहों पे ऐसा आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि जो स्टिग्मा है या वो जुड़े हैं या फ्री हैं, कार्पल्स क्या है, जैसे ये एक कार्पल की बात करते हैं। कार्पल अगर ये सिंगल है तो इसको बोलते हैं मोनो कार्पिलरी, और दो है तो बाइकार्पिलरी, तीन है ट्राइकार्पिलरी, 4, 5, 6 इस तरह से मल्टी कार्पिलरी। ये लिखा है मैंने, मोनोकार्पिलरी, बाई, ट्राई, टेट्रा और फिर मल्टी कार्पिलरी। अब बेसिकली दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये मोनो, बाई, ट्राई, मल्टी कार्पल्स होते क्या है, एक चीज। और दूसरी बात, कई बार बच्चे जो है यहां कंफ्यूज करते हैं कि ये आ गया ना हमारा कार्पिलरी, फिर लोकुलर, लोक्यूल, सिंगल तो मोनोलोकुलर, बाई तो बाइलोकुलर, दो तो बाइलोकुलर, तीन तो ट्राइलोकुलर, फिर मल्टी लोकुलर। ये थोड़ा आपको आराम से मैं बता देता हूं। देखो, जब सिंगल कार्पल है, एक कार्पल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा इज ए रिसेप्टिव सरफेस। क्या है ये स्टिग्मा? क्या है? लैंडिंग सरफेस या रिसेप्टिव सरफेस? इट इज ए रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन्स। किसके लिए? पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर का लैंडिंग सरफेस है या रिसेप्टिव सरफेस है। यहां पे आके पोलन सेड ओवर होते हैं, एयर करंट उसको लेके जाते हैं, या इंसेक्ट्स की जो लेग्स हैं वहां उनके साथ अटैच करके ये इसके साथ चिप जाते हैं। ये बड़े सारे और भी तरीके होते हैं, पानी के साथ भी होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू भी होता है, एयर के थ्रू भी होता है। अब ये हम सिंपल बात कर रहे थे कार्पल्स की। सिंगल इस तरह से ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है तो ये सिंगल कार्पल हुआ। अगर यहां पे इस तरह से दो हो जाएंगी, 2 ओवरीज, स्टिग्मा स्टाइल इस तरह से ओवरीज, तो बाइकार्पल्स, बाइकार्पिलरी, 3 ट्राइकार्पिलरी, मोर देन 3, 4, 5, 6 स्टिग्मा स्टाइल ओवरी
complete single makes a single carpel. More than 2 3 4 5 6 they makes but multi carpellary. यहां तक पता लग गया। अब इनमें क्या होता है कि ये जुड़े हुए रहते हैं बाहर से, जैसे ये मैंने आपको यहां दिखाने की कोशिश करी है। ये क्या रहता है, ये जो इनके स्टिग्मा ऊपर से बंद है और जो कार्पल्स हैं दे आर यूनाइटेड। क्या? कार्पल्स आर ज्वाइंड, कार्पल्स आर ज्वाइंड, जुड़े हुए, उसको बोलते हैं सिन कार्पस। सिन मतलब फ्यूज्ड, कार्पस मतलब कार्पल्स। सिन कार्पस, ये कंडीशन आती है सिन कार्पस, जिसमें ये स्टिग्मा ऊपर से अटैच है और अंदर से ये बाहर से ये बंद है, ये वो कार्पल्स आर फ्यूज्ड। और अगर ये फ्री है, अगर ये यहां बंद नहीं है, खुले हैं, जैसे ये सब कार्पल्स हैं, मल्टी कार्पल्स हैं, दे आर फ्री, फ्री कार्पल्स। इनके लिए एक नाम आता है एपोकार्पस। क्या आता है? एपोकार्पस। फ्यूज्ड जिसमें कार्पल्स आएंगे दे आर नेम्ड एज पैपेवर, उसको हम पैपेवर का एग्जांपल देंगे। और जिसमें फ्री रहेंगे दैट इज द एग्जांपल ऑफ माइकेलिया। इनमें कार्पल्स फ्री रहते हैं, सिंगल, बाई और ट्राई और टेट्रा। अब जो ओव्यूल की हम बात करते हैं, मींस ओवरी, ओवरी में ये अगर ओवरी है तो ओवरी में इस तरह से द वॉल ऑफ ओवरी है और इस वॉल के साथ इस तरह से थिकनेस ऑफ ओवरी एंड द सीड्स आर अटैच्ड विथ दिस। ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है यहां से ये क्या कर रहा है, ये इसका नरिशमेंट ले रहा है, तो ये इसका पार्ट हुआ प्लेसेंटा। और ये जो स्टॉक जैसी है इसको बोलते हैं फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकल। और ये क्या हुआ? ओव्यूल। और ओव्यूल ही मैच्योर होने के बाद क्या बनता है? सीड। एंड दिस ओव्यूल इज नाउ नोन एज मेगास्पोरेंजियम। इस ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। नॉर्मली आपने देखे होंगे ये सब, ये अगर हम देखें यहां पे, ये देखो, ये अगर पी के केस की बात करें तो ये देखो, ये इसके साथ अटैच्ड है। तो ये वॉल जो है ये जब जहां से हट गया ये, और ये जो स्टॉक जैसी थी इसकी, इस स्टॉक को बोलते हैं फ्यूनिकुलस। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकुलस। और जहां से जुड़ा हुआ है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं इसको। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। और ये ओवरी इसकी फूड प्रोवाइड कर रही है प्लेसेंटा के थ्रू। और जहां से ये अटैच्ड था, ये स्टॉक जैसी जो है, इसको स्टॉक को क्या बोल देंगे? फ्यूनिकल। और जिस पॉइंट से, जिस जगह से ये अटैच्ड था, ये जो मार्क्स है, इस मार्क को हम बोलते हैं हाइलम। ये मैं इसकी सेक्शन कटिंग करके आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाता हूं अभी। आई होप कि थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। दिस इज ओवरी, और ओवरी में ये हमने इसकी ओवरी की वॉल थी। और ये जो अगर हम स्टॉक की बात करें, ये ऐसे, ये, और ये जो छोटी सी स्टॉक है इसको फ्यूनिकल बोलते हैं। और जहां से ये नरिशमेंट लेता है उस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। और जहां पे ये इसके साथ अटैच था ओव्यूल के साथ, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? हाइलम। अगर आप इसमें ऐसे देखोगे, ये जो ग्राम का सीड, चने का सीड है, ये जो पॉइंट ऑफ, ये जो है, ये अटैचमेंट है। और यहाँ पे अगर आप भिगो के इसको देखोगे तो यहाँ पोर जैसा दिखता है, यहाँ जैसे चने के सीड में। इस पोर को माइक्रोपाइल बोलते हैं। यहाँ कुछ एक सीड्स में दिख जाते हैं ये ब्लैक ग्राम या जो व्हाइट ग्राम, अगर इसको भिगोगे तो यहाँ पे हल्का सा पोर सा दिखता है। वो पोर क्या है? एक्चुअली एक डिप्रेशन जैसी है, उस डिप्रेशन को माइक्रोपाइल बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको। और ये जो निशान सा ट्राइंगुलर सा, इस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। ये अटैच करता है, जैसे अभी आपको मैंने मटर के बारे में बताया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस मेगास्पोरेंजियम। यहां तक पता लग गया आपको? बाइकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी, सिनकार्पस, एपोकार्पस और ओव्यूल की स्ट्रक्चर की अटैचमेंट की बात करी, प्लेसेंटा और साथ में फ्यूनिकल जो इसको अटैच करवाने में हेल्प करता है। नाउ वी विल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल दैट इज नॉट एज मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम आपको मैं दिखाता हूं।
दिस इज ए सेक्शन ऑफ मैगोस्पोरेंजियम एनाट्रोपस ओव्यूल, ये शेप ले रखी है हमने। एंड दिस पार्ट, वो पार्ट है जो अभी मैंने आपको मटर की सीड में भी दिखाया था, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो बता रहा था, ये इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। दैट अटैचेस दिस ओव्यूल विद द वॉल ऑफ ओवरी। और जिस पॉइंट पे वहां पे जाके अटैच करते हैं, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। और नाउ व्हाट हैपेंस, सेंट्रली इट कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक। सेंट्रली इट इज कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक surrounded with a mass of cells, mass of cellular layer which is known as nucellus। इसको क्या बोलते हैं? nucellus बोलते हैं। which contains a number of mass of cells, they are covering this embryo sac and they have dense cytoplasm, they contain nutritive material, they provide the nourishment to the developing एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पार्ट्स यहाँ पे एग या और चीजें जो भी डेवलप करती है, उनकी डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो सैक में जो डेवलप करती हैं, उन पार्ट्स को डेवलप करने के लिए नरिशमेंट जो दैट इज प्रोवाइडेड बाय द न्यूसेलस, बिकॉज इट कंटेन्स नंबर ऑफ सेल्स, मास ऑफ सेल्स, दे प्रोवाइड दिस नरिशमेंट। नाउ आउटसाइड द न्यूसेलस, maximum ovules are covered by two coverings. They are covered by two coverings. These coverings are named as outer covering and inner covering. The outer covering is known as outer integument. This is known as outer integument, and inner wall is known as inner integument. इसको क्या बोलते हैं? Inner integument. और यहाँ पे जब ये जहाँ फ्यूनिकल के साथ अटैच करता है, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की जो इस पॉइंट को बोलते हैं हम हाइलम। जो सीड में मैंने आपको दिखाया था, जो मार्क सा था वो दिख रहा था मटर की सीड में भी और ग्राम की सीड में भी, तो वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां से एक कर्व सा दिखता है, ये हाइलम बोलते हैं इसको। इट मेक्स द अटैचमेंट इट विद फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के साथ ये अटैच करता है ये। आई होप क्लियर पता लग रहा होगा आपको। एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, and then they are not attached at one point. At this top of this embryo sac on one side, they are not attaching, they are creating some gap. ये जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल, जो मैंने आपको ग्राम की सीड में दिखाने की कोशिश की थी। और माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड पे ये जो एरिया होता है बेसल पार्ट पे, दैट इज नोन एज चलाजल एंड। टुवर्ड्स द ओवरी की अगर हम बात करें, इस एंड को क्या बोलते हैं? चलाजल एंड बोलते हैं। इसके ऑपोजिट यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड। एम्ब्रियो सैक, इट वाज कवर्ड बाय द मास ऑफ सेल्स, दे आर नोन एज न्यूसेलस, which contains the nutritive food material. They provide the nourishment to the developing embryo sac, and embryo sac develops the egg and other materials. Later we will discuss about it. And they are covered by, mostly they are covered by the two layers, outer and inner. Outer is known as outer integument and inner is known as inner integuments. They are covering it, and at one point they are not attaching and they are leaving some gap. That gap is known as micropyle. Opposite to this is known as chalazal end, and they are covered and they are attached at one point with the ovary. That stalk is known as funicle, and where they attaches, that is known as placenta. I hope आपको ये क्लियर पता लग गया होगा। This is the structure of megasporangium, which is also known as ovule. क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लियरली पता लग गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।